Welcome everyone. Let's dive into our first session. A room full of strangers, how to network with intent. Let's start with a little bit of activity. Raise your hands if you've ever felt that slightly awkward starting a conversation with a stranger. Same here, exactly. So, just let's take the next 20 seconds. Please say hello and give a small introduction to the person sitting right next to you. And you can talk about what you do. Excellent. So, moving forward, so that wasn't very difficult, was it? Right? Now, networking starts with just one simple conversation. Now it is my pleasure to introduce the moderator for this engaging conversation, Mr. Karun Kashmiri. He is the founder of Manthan Vichar or Samvad and Digital Udariyan on YouTube. A thought leader and digital creator, he sparks meaningful conversations and shares powerful stories that inspire audiences around ideas, society, and personal growth. Professionally, he is a financial planner and by passion a contentpreneur. He has hosted approximately 180 podcasts, engaging with diverse voices and perspectives. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Karun Kashmiri, our moderator for this session. Let me now introduce our powerful panelists who will share their experiences and insights on the power of networking. Mr. Jigarjeet Singh, Managing Director and co-founder of JW Infotech. He is a technology entrepreneur and AI strategy expert. Through innovative AI and IT solutions, he helps organizations scale and drive digital transformation. He is also the co-founder of the Chandigarh Connect Circle, a thriving community that highlights the importance of meaningful networking and collaboration. Please welcome Mr. Jigarjeet Singh. Mr. Vivek Johar. He is the founder of Gift Boutique. He is a creative entrepreneur known for designing unique and personalized gifting experiences. His brand beautifully blends creativity with thought design to create memorable experiences for individuals and corporate clients. He also conducts workshops on the importance of networking and relationship building, showing how meaningful connections will help businesses grow. Please welcome Mr. Vivek Johar. Mr. Sumit Singh. He's a founder and CEO of BSolver Technology Private Limited, with over 14 years of experience in building innovative software solutions. He is known for driving digital transformation and delivering high-impact IT solutions across global markets. Beyond technology, he actively connects with entrepreneurs and enjoys sharing his insights on entrepreneurship and networking. Please welcome Mr. Sumit Singh. I hand it over to Mr. Karun to take forward the session. Thank you. Yeah, good morning everyone. Good morning. सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये हम लोग आपस में बातें नहीं करेंगे, आप लोगों से भी बातें करेंगे बिकॉज आप लोग एक नेटवर्किंग सेशन के ऊपर टॉक करने के लिए आए हैं. सो यू शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट. सबसे पहले तो ये बताओ सब लोग टाइकॉन में आते क्यों हैं? एनीवन? नेटवर्किंग. सो द पहला चीज है कि हमारा जो सेशन है वो सबके मतलब का है क्योंकि टाइकॉन में हम लोग आते ही इसी पर्पस से हैं. ठीक है. और जो हमारे साथ 3 लोग बैठे हैं ये अपने आप में, मैं अगर अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो हम तीनों का चारों का आपस में जो तारुफ है ये सिर्फ एक टाई के कारण ही है और ये इसी नेटवर्क के कारण है कि हम 4 एक पैनल कर रहे हैं. एम आई राइट? यस. सो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा जिगर आपसे. आप आईटी कंपनी चलाते हैं, उसके साथ में आप एक कम्युनिटी भी बिल्ड कर रहे हैं, चंडीगढ़ कनेक्ट. सर क्या रीज़न रहा कि आपको लगा कि एक कम्युनिटी और बिल्ड करनी चाहिए या आपकी कम्युनिटी बाकी कम्युनिटी से किस तरह से अलग है?
मैं पहले तो बहुत कम्युनिटीज़ का पार्ट था ऑलरेडी. So we got together one day and saw there's a gap between normal like already running communities and ours. The normal networking communities focus more on कि business कैसे बढ़ाया जाए. But we thought कि जब तक connection नहीं बनता आपस में, so you can't learn from each other, right? तो जैसे हम आपस में बात करेंगे, एक stranger जैसे एक stranger से बात करता है वो different होता है. Once we start to get into a inner circle of other person, तो वो जैसे आपस में बात करते हैं, that the way they talk to each other is different, right? So जैसे हमारे कुछ खास दोस्त होते हैं, सबके होंगे, right? तो जैसे आप उनसे बात करते हो और जैसे आप मेरे से बात करोगे, that would be way different. सिवाय अगर आप मेरे ऑलरेडी दोस्त हो या मेरे को जानते हो, ठीक है? तो we tried to fill that gap with connect circles and we tried कि वहाँ पे we can teach each entrepreneur to build their personal brands किसी तरीके से. That's it. So basically एक चीज़ तो ये है कि जब हम किसी भी कम्युनिटी में जाते हैं, हम कोई भी नेटवर्क सेशन में जाते हैं, सबसे पहली जो चीज़ है जो जिगर ने बात की, हम लोग ब्रांड बिल्ड करते हैं. हम लोग कंपनीज के ब्रांड्स के ऊपर बहुत बात करते हैं लेकिन अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर बात नहीं करते. तो किसी भी नेटवर्क सेशंस में जाके आपको सबसे पहले अपना ब्रांड बिल्ड करना होता है. ये है आज का पहला टेक. नाउ गोइंग टू विवेक. विवेक जी, आप नेटवर्किंग के ऊपर बहुत तरह के सेशंस लेते हैं, आप लोगों को नेटवर्किंग करना सिखाते हैं. तो सर अगर मैं आपसे सिर्फ 2 टिप्स पूछना चाहूँ कि किसी भी नेटवर्क में जो आदमी स्ट्रेंजर के तौर से जाता है तो उसको अपने दिमाग में क्या 2-3 बातें रखनी चाहिए कि मैं इस नेटवर्क का कैसे बेनिफिट ले सकूँ? Yeah, this is a good question. 2 things I want to mention here that what you can do. One is that you have asked a question that why you guys are here, why you guys are attending TiECon, and most of you have answered that you are here for networking. I want to ask you a question again, that what do you mean by networking? What is your definition of networking? Can somebody answer? Just one answer I'm looking for. And we will give our gifts also. This is the only panel जहाँ पे हम गिफ्ट्स भी देंगे, बाकी किसी रूम में गिफ्ट्स नहीं बट रहे. Yeah. Best answer gets a gift. Can somebody tell me what is networking? To be able to build meaningful relationships which we can also leverage for our professional growth. Yeah, that's an outcome of networking, but no. इसमें क्या होता है? Yeah, please. इसमें ये है कि हम नेटवर्किंग करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे. इनका बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस क्या है, आपस में हम ईच अदर कनेक्ट करेंगे तो मेरी रिक्वायरमेंट को इनकी रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल कर सकता हूँ, इनकी रिक्वायरमेंट को मेरी रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर सकते हैं. ऐसे ही हम 10% कनेक्ट होंगे तो आपस में रिक्वायरमेंट इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा. तो मेरा तो ये मानना रहता है कि नेटवर्किंग में आएंगे. So these are right answers. These are not wrong answers. The only thing is that these answers are the outcome of networking. Networking actually is that when you are meeting somebody, are you creating any value for that person? Yeah. If you're not creating any value for that person, you are just adding a phone contact in your phone book. That's nothing else. If you really want to make a connection, वो आदमी जिसको आप एक बार मिले हैं, just question yourself after that meeting that whether this person would like to meet me again. And this is a question which you should really ask yourself. So the first thing of networking, the basic rule of networking is that whenever you are meeting somebody, the spotlight, the focus should be on that person and not on you. Make him or her the most important person for that particular time, till the time you are interacting with that person. Coming back to this question, one of the things which you can do, and this is an extension of what I have just mentioned, that God, जिसने सृष्टि रचाई है, उसने आपको 2 कान दिए और एक ही ज़बान दी. उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि सुनिए ज़्यादा और बोलिए कम. Whereas if we just think, if we just introspect, what we do is that whenever we meet somebody, the first thing, and the first card I have got in the first minute after entering the TiECon, ये मेरी जेब में ही पड़ा है. I have not even looked at it. Why we are exchanging cards? Have we asked that person that from where you are, what you do? So this is the very basic thing, that spotlight should be on that person if you really want to develop some genuine connections. Otherwise, after end of this event, you might be having 100-150 cards. जब आप अपनी गाड़ी लेने जाएंगे शाम को यहाँ से, आपके पास 150 कार्ड होंगे. But tomorrow when you will reach out to those people will not even remember you. So please listen, please give attention to people and make him or her the most important person. That's the number 1 thing. Number 2 is, as I've just mentioned in the beginning of this conversation, create value for that person so that he wants to meet you again and again. So these are the 2 sense of what
you have asked. Thank you. So what I can just out from these 2 points, the thing is कि when we meet somebody who is a stranger to us, it's always to have a little bit conversation rather than just exchanging the cards. नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जेब में बहुत कार्ड होता है, जब शाम को हम जा रहे होते हैं तो आधे डस्टबिन के अंदर ही पड़े होते हैं। और इसीलिए है कि पिछले 3 साल से मैंने कार्ड छपवाने ही बंद कर दिए कि अगर कोई मेरे से अच्छा कन्वर्सेशन कर रहा है, वो मेरे से फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेगा, मेरा लिंक्डइन आईडी ले लेगा, हम उसके बाद कनेक्ट हो जाएंगे, तो शायद वो कनेक्शन ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए अपने कार्ड्स के ऊपर पैसा खर्चना बंद कीजिए। इट्स बेटर टू एक्सचेंज द नंबर्स। I hope there are no printers in the room. यस सुमित जी, नॉर्मली ये कहा जाता है आज की डेट में स्पेशली, द नेटवर्क इज योर रियल नेटवर्क। आपको लगता है कि नेटवर्क से एक्चुअल में बिजनेसेस निकलते हैं? Good morning, everyone. Thanks for joining us on this panel. पहली बात तो मैं अभी मैम ने इंट्रोडक्शन में बोला था कि जो नेटवर्किंग है वो आपकी हाय हेलो से स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, आई थिंक सो किसी स्ट्रेंजर को अगर आप स्माइल भी दे दोगे वो भी आपका कनेक्ट स्टार्ट कर देगा। नॉट जस्ट टू से हाय और हेलो, आप एक स्माइल भी पास कर दोगे, दैट विल बिल्ड ए कनेक्शन। और जैसे विवेक जी ने बोला, नेटवर्किंग का मतलब जो है वो है आपका कनेक्ट। जस्ट लाइक इन ए फ्रेंडशिप, व्हेन टिल द टाइम यू डोंट गेट कनेक्टेड, you don't get be friends. Similarly, in any kind of relationship or especially networking, till the time you don't connect with someone, you cannot build that networking into a relationship. इसी रूम में मेरे लिए कम से कम 6-7 एग्जाम्पल्स बैठे हैं, और द बेस्ट वन इज इफ आई गेस इज मिस्टर सजल गुप्ता. So he is the one earning from best earning from. He is like brother to me now, and we have met only 2.5 years ago, and it's through tie only. नेटवर्किंग का मीनिंग ओनली बिजनेस बिल्ड करना नहीं होना चाहिए. नेटवर्किंग आपका जो थिंकिंग है वो ये है कि इट्स नॉट ओनली फॉर बिल्डिंग द वेल्थ एंड द बिजनेस. Just like Jigarjeet is running a Chandigarh Connect Circle, so you can do something for the community as well by doing the networking. By doing the network, you can do for something for the environment, something for the society, something for the for the people who really need the help. So it's, you need to focus on networking to get something out of that, not to just build your empire, your wealth. So my thinking is that you should do the networking, and it starts with smile and connect with the person. If you feel connected, then please. And the most important thing that someone has told me at one networking session, कि हर कोई यहाँ पे, जैसे आपने अभी बात की कि विजिटिंग कार्ड लेके हम लोग एक्सचेंज करते हैं, लेके चले जाते हैं. How many of us reconnect with that people after meeting once? आप लिंक्डइन की बात करते हो, लिंक्डइन पे हाय का मैसेज डाल दो. समटाइम्स द पर्सन इज बिजी, हाउ मेनी टाइम्स वी फॉलो अप. वो अभी मेरे एक फ्रेंड बैठे हैं सेल्स वाले, वो उनको अच्छे से पता कि फॉलो अप कितना इम्पोर्टेंट है. तो आपको उसका फॉलो अप भी उसके साथ रिकनेक्ट भी करना पड़ेगा टू बिल्ड योर कनेक्शन. तो मैं जितना सुमित की बात से निकाल पाया कि ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हेलो करने से पहले वो कहते हैं ना, आपकी आंखें मिलती हैं और उसके बाद आपकी स्माइल एक्सचेंज होती है. और अगर आपकी किसी के साथ आंख से आंख मिल गई और स्माइल पास हो गई, शायद उसके बाद आपको हेलो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका कनेक्शन अपने आप बिल्ड हो जाता है. और सेकंड थिंग जो सुमित ने बात की कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम किसी भी नेटवर्क में जा रहे हैं हम ये सोच के जाएं कि हमें वहाँ से नेटवर्क ही बनानी है. नेटवर्क अपने आप बन जाएगी अगर आपका नेटवर्क अच्छा बन जाएगा. क्योंकि जब आप लोगों के साथ कनेक्ट बना लेंगे, वो आपको जानेगा, आप उसको जानेंगे. आज नहीं आएगा, साल के बाद आएगा, 2 साल के बाद आएगा, आपको नेटवर्क आएगी. लेकिन हमारा सोल मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मैं किसी भी नेटवर्क में जा रहा हूँ तो मेरे को वहाँ जाके नेटवर्क ही क्रिएट कर लिया. जिगर, इसके साथ मिलती हुई बात मैं करना चाहूँगा कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम नेटवर्क में मिलते हैं लोगों से, कितना इंपॉर्टेंट है नेटवर्क के मिलने के बाद, आप हेलो कहने के बाद जाके एक दूसरे को फॉलो अप करना. तो इसका I was just while all of us were trying to explain the things, I was thinking कि there is a difference between acquaintances and relations. ठीक है, नेटवर्किंग से दोनों चीज़ें मिलती हैं. You get acquaintances, you get relations. यहाँ पे ऑडियंस में how many of you know me like personally? आप लोग मेरे को कैसे मिले? Connect circles or tie. So
दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग, राइट? सुमित जी और मैं कितनी बार इकट्ठे बैठे होंगे, बट वी मेट इन लंडन टेक वीक, वी स्पेंड टाइम टुगेदर देयर rather than here. तो इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग. वहाँ क्या करने गए थे? नेटवर्किंग. ऑल दीज इवेंट्स आर अबाउट नेटवर्किंग. तो द डिफरेंस बिटवीन acquaintances and relations is spending time with them, having coffee chats, having conversations which are much needed. एक दूसरे के लिए, जैसे विवेक जी ने कहा, वैल्यू क्रिएट करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड उनको क्या चाहिए और आप कैसे जेन्युइनली हेल्प कर सकते हो. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि पैसे कैसे बनेंगे. एट द एंड पैसे कैसे ना कैसे बन जाएंगे, सबके बन रहे हैं. बट व्हेन यू क्रिएट वैल्यू, यू अर्न फ्रॉम इट द रिस्पेक्ट, द रिलेशन फॉर लाइफ. तो मेन मोटिव रहना चाहिए रिलेशन बिल्डिंग थ्रू नेटवर्क. जैसे करण जी, आपका क्वेश्चन है कि जाके फॉलो अप करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना यहाँ आना, और वो स्टेप हम हमेशा मिस कर जाते हैं. अब हमारे एक्स प्रेसिडेंट है टाई के, सतीश जी, वी आर वेरी क्लोज नाउ जस्ट बिकॉज वी मेट many times after last tie event. तो it's about reiterating कि एक दूसरे को कैसे जानते हैं. मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन और करना चाहूँगा कि जैसे जिगर ने कहा या सुमित ने भी कहा, हम लोगों का ना अगर आपस में कनेक्शन है, अगर हम एक दूसरे को स्माइल पास करके मिलते हैं, तो हम अपना जो इकोसिस्टम अपने बिल्ड कर सकते हैं. मेरे ख्याल इस हॉल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कल मैंने ये स्पेशली कहा था कि कल हमारा सेशन है, आना. और मेरे को लगता है कि अगर हमने जितनों को बोला था उसमें से लगभग 80% लोग यहाँ पे बैठे हैं. वो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने बोला, उनको ये लगा कि एक अगर सेशन हो रहा है और सेशन में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो आपको पर्सनली डिवाइड कर रहे हैं तो वो आपको कुछ वैल्यू देना चाहते हैं, आपसे कुछ वैल्यू लेना चाहते हैं. दैट्स व्हाई यू पीपल आर हियर. और सुबह 10 बजे पहला सेशन हमारा है और हाउसफुल है, तो क्लैप फॉर योरसेल्फ. विवेक जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा. हम लोग ना बिजनेस बनाने के लिए या पर्सनल ब्रांड्स बनाने के लिए हम लोग बहुत पैसा खर्चते हैं, लेकिन हम ना अपनी सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए काम नहीं करते. और आप लोग इसी चीज़ के ऊपर वर्कशॉप्स लगते हैं. तो आप ये चीज़ बताइए कि अपने ऊपर सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए स्पेंडिंग करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. Self-learning actually is very important. I'm not saying because I conduct workshops. The latest I conducted last evening only. In India, people are still not that open to spend money on the workshops. जो workshop free होगी वहाँ पे लोग आ जाते हैं, लेकिन जब वो मिस कर जाते हैं तो उनको कोई फोमो नहीं होता क्योंकि उन्होंने कोई पैसे नहीं खर्चे. लेकिन अगर आप थोड़े पैसे रखते हैं, थोड़ी फीस रखते हैं, लोग आ जाते हैं. आप थोड़े से पैसे ज़्यादा रखेंगे, पीपल विल गो आउट एंड पार्टी बट दे विल नॉट स्पेंड ऑन देयर सेल्फ डेवलपमेंट. सो पीपल हैव टू रियलाइज दैट इफ दे आर अटेंडिंग वन सेशन विच इज़ एक्चुअली गिविंग वैल्यू टू देम, और अगर वो उनको उनके नेक्स्ट वर्जन पे ले जाता है या उन पे कोई इम्प्रूवमेंट आ जाती है, तो आई थिंक इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. Coming back to what Jigarjeet has mentioned, I think he has mentioned a very good point that you don't have to follow up with people. Follow up is a very overrated term now. I think we should follow through. Before that, I also want to make a point कि हम किसी को इसलिए मिलते हैं. मैं अगर गौरव जी को मिला हूँ और मुझे लगेगा कि गौरव जी मुझे कोई रेफरल्स नहीं दे सकते या मेरे कोई बिजनेस में हेल्प नहीं कर सकते, आई विल नॉट मीट गौरव जी अगेन. तो किसी हिंदी एक कवि थे, शायर थे, उन्होंने लिखा था कि वो मतलब से मिलते थे, हमें मिलने से मतलब था. क्या बात है. कितने हमारे यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लोगों को मिलते हैं विदाउट एनी एजेंडा. हैव यू एवर रीच्ड आउट टू समबडी, यू वांट टू मीट समबडी विदाउट एन एजेंडा? आई नो अमित जी मिलते हैं बिकॉज ही इज अ गुड नेटवर्कर, बट मोस्ट ऑफ अस विल मीट कि यार इससे मुझे बिजनेस कितना आने वाला, मैं तब मिलूंगा इसको जाके. और हम फॉलो थ्रू क्यों नहीं करते? फॉलो अप कर लिया क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था, अच्छे नेटवर्कर्स ने बोला था कि फॉलो अप करना है. अभी हम जाएंगे और कल ही हम लिंक्डइन भर देंगे पूरा लोगों का, फॉलो अप करेंगे. सुमित जी आपसे मिलके आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू, होप यू आर डूइंग गुड, विल कैच अप अगेन. दीज आर वेरी जेनेरिक मैसेजेस. ये तो आप चैट जीपीटी एआई को बोलिए, वो कर देगा आपके लिए. मैं गौरव जी को मिला, मैंने गौरव जी को बोला कि गौरव जी, दैट वन पॉइंट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस in healthcare industry and how it is going to shape the world has resonated with me. We'll connect again over this. Now what Gaurav ji will feel कि इस आदमी ने मुझे सुना, इस आदमी ने वो पॉइंट पकड़ा और इसीलिए he is reaching out to me.
अब एक मैसेज के बाद खत्म हो जाएगा कि हमने फॉलोअप्स भी किए। नेटवर्किंग कोचेस ने बोला था फॉलोअप करने, मैंने 98 लोगों को मिला, 98 फॉलोअप किए। उसके बाद क्या किया आपने? किसी ने आपको रिप्लाई नहीं किया, आपने छोड़ दिया। तो एक और हिंदी के शायर ने एक और चीज लिख दी, उसने लिखा है कि हम डरते हैं बहुत लंबे वक्त के वादों से, इसीलिए अब हम पेड़ नहीं गमले लगाते हैं। कौन वेट करेगा इतनी देर? कौन वेट करेगा इतनी देर भाई? एक बार में धंधा आना चाहिए। गौरव जी को मिला, धंधा नहीं आया, गौरव जी लिस्ट से कट, बेकार आदमी। जो आदमी पहली बार में धंधा दे दे, हम तो उसी से बात करेंगे। यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स। इन्वेस्ट कीजिए प्लीज। प्लीज स्टार्ट एडिंग वैल्यू टू द पीपल। इफ यू फाइंड अ गुड आर्टिकल इन न्यूज़पेपर या डिजिटल आपको कुछ मिला, प्लीज सेंड टू दैट पर्सन। If you have found out in a conversation that Mr. Karun Kashmiri is an avid reader, why don't you find a book and send it to him? But उसमें effort लगता है। Networking is a very very long journey. You have to deepen the relationships. हम लोग connects बना लेते हैं, 1000 connect है हमारे। मैं LinkedIn की top voice हूँ, 6000 connects है मेरे। Nothing is going to happen. My only humble submission and request to you, and this is from my experience only. मैं कोई भी ऐसी कुर्सी पे नहीं बैठा हूँ कि मैं आपको कोई preaching या कोई ज्ञान दे सकूँ. But what I'm trying to tell you is that if you make just 5 connections in this Tycoon, if you make only 2 connections in this Tycoon, but just deepen the relationship, understand the person, so that you will have 2 genuine connections rather than 1000 generic connections. So that's my take on this. मैं इस पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। ये बात बिल्कुल सही है कि मैं इसको जस्टिफाई भी कर सकता हूँ। यहाँ पे रूम में 4 या 5 लोग ऐसे हैं जिनको शायद मैंने पहली बार एक टाइकॉन में इनवाइट किया था कि आप आओ, आप देखो कि हम टाई में करते क्या हैं। और उसके बाद उसमें से आधे लोग जो हैं इसी रूम में हैं जो मेंबर्स बने हुए हैं टाई के, क्योंकि उनको लगा कि टाइकॉन में 3000 की टिकट या 2500 की टिकट लेने के बाद ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ से हम अगर बिजनेस ही निकाल सकते हो तो कम से कम सेल्फ लर्निंग पे तो हम काम कर ही सकते हैं। तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग इसको एक्सपेंस समझते हैं। जिस दिन आप इसको इन्वेस्टमेंट समझना शुरू कर देंगे वो बहुत बढ़िया रहेगा। और एक मैं आपकी बात को एक ऐड करता हूँ, जैसे सबने हम लोगों ने लगाया आई एम अटेंडिंग टाइकॉन या आई एम अ स्पीकर एट द टाइकॉन, तो मेरे को भी 2 दिन पहले किसी महाशय जी का मैसेज आया, करुण इट्स गुड, आई हैव सीन योर प्रोफाइल एंड समथिंग, आई एम ईगर टू मीट यू एंड वी विल कैच ऑन अ टाइकॉन। मैं ख्याल टाइकॉन खत्म होने वाला भी आ गया, वो बंदे का ना फोन आया ना मैसेज आया। मैं भी रात जाके देख रहा था कि भाई को कोई मिला तो नहीं था। तो ऐसे मैसेजेस का भी कोई फायदा नहीं। और हम लोग कई बार ऐसा होता है, हम किसी को कहते हैं सर हम ना लिंक्डइन पे कनेक्टेड हैं। अरे ऐसे कनेक्शन का फायदा क्या, अगर वो आपको नहीं जानता आप उसको नहीं जानते। वो बिल्कुल सही है, आपके कनेक्शन में आपके फोन में 50 नंबर होना बहुत जरूरी है, रादर देन कि 500 नंबर है। जिस दिन आप उसको कॉल करो वो बोले हाँ जी आप कौन बोल रहे हैं यार, हम कहाँ मिले थे। तो नेटवर्क एक्चुअल में बनाइए जो आपको काम आ सके, और जरूरी नहीं कि बिजनेस में काम आ सके। कई बार हमारे टाइम में हमारा एक हेल्पलाइन चलता है, हम लोग कई बार किसी को नहीं जानते थे, हमें कोई छोटी सी समस्या होती है या कोई चीज़ हम ढूंढ रहे होते हैं, हम उसमें डालते हैं कि यार आई नीड हेल्प, हमें 50 लोगों के मैसेज आ जाते हैं इसका सोल्यूशन ये है, वो बैठे बैठे सॉल्व हो जाता है। वो है पावर नेटवर्क की। आपको धंधा नहीं मिल रहा लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूर हो रही है। तो नेटवर्क को इस तरह से यूज अगर आप करेंगे तो आप नेटवर्क से बहुत कुछ कमाएंगे। सुमित जी ओवर टू यू। सर आपने जैसे बताया कि आप टाइकॉन में एक, जैसे हमारी पहले भी बात हुई, एक आप मेंबर की तरह आए थे, उसके बाद आप टाइकॉन में इन्वॉल्व होते चले गए, आप टाई में इन्वॉल्व होते चले गए। सर अपने आप को किसी भी इकोसिस्टम में डेवलप करना कितना मुश्किल और कितना इजी है, और ये टाई क्या सिखाता है? वैसे तो मैं ये कहूँगा कि टाई बहुत कुछ सिखाता है। टाई बहुत कुछ सिखाता है, बट सीखने वाला होना चाहिए और सीखने की आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। Thai, I have joined Thai around 3 years ago, and when I have joined, I have attended the TaiCon under presidentship of Mr. Harit. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे होता क्या है, मेरे कोई आइडिया। मैं जस्ट इवेंट अटेंड करने आया एंड आई हैव अटेंडेड आई थिंक सो फॉर हाफ डे। वहाँ से मेरे को एक थोड़ी बहुत लर्निंग्स मिली फॉर नेटवर्किंग। नेक्स्ट टाइकॉन में तक आते आते मैं वो नेटवर्किंग को यूज करते हुए अपने कनेक्शंस बिल्ड कर गया था। उस कनेक्शंस को बिल्ड करते करते, जैसे अभी हमने बिजनेस बढ़ाने की बात कही, तो मैं ये कहूँगा कि जो कनेक्शंस मैंने टाई में जो अर्न किए हैं, जिसमें से 5-6 यहाँ पे बैठे हैं और 3 आप उसमें से हो, मैंने कभी इनसे बिजनेस की बात नहीं की और ना बिजनेस एक्सपेक्ट किया।
और जो आपने हेल्प नेट की बात की, वहां से मुझे बिजनेस मिला, वो भी अननोन बंदे से, लेकिन टाई का मेंबर। अब ये देखो कि सजल, गौरव, राजदीप, आप तीनों 6 लोग यहाँ पे बैठे हैं जो मेरे कनेक्शन में हैं और रेगुलर अब हम कनेक्शन में रहते हैं। मैंने इनसे ना बिजनेस की एक्सपेक्टेशन की और ना मुझे मिला, लेकिन एक टाई का ही जो एक मेंबर जो मुझे सिर्फ हेल्पनेट के थ्रू मिला, लेकिन आई हैव गॉट बिजनेस फ्रॉम हिम एंड आई हैव नॉट मेट हिम टिल टुडे। We are working together since last 1 year and we have not met till today because he is now out of India. So when he will come, we will meet. Even we did not meet on online video call. लेकिन we are doing business. So networking is you have जो आपने एक क्वेश्चन जो टाई के बारे में पूछा, इसका ये मेंबर बनने के बाद लर्निंग के लिए आपको एक चीज बहुत साइड पे रखनी पड़ेगी, वो आपकी ईगो। जब भी आप नेटवर्किंग करने जाओगे, आप छोटे से मिल रहे हो, आप बड़े से मिल रहे हो, यू हैव टू पुट ईगो असाइड। वेरी वंडरफुल। और टाई का या किसी भी नेटवर्क का ये हमेशा से मोटो रहता है कि हमें ईगो सबसे पहले अपनी, वो कहते हैं मैं जे मैनू मार लिया तो मेरे तो बड़ा मैं कोई नहीं हो सकता। अपनी मैं मारनी सब तो औखा काम हैगा जो असी नहीं कर पाते। और प्रॉब्लम भी यहीं पे होती है कि हम लोग मिलने के बाद ना अपनी बात कह देते हैं या हम फोटो उसके साथ खिंचाना चाहते हैं जिसको हमने कहीं पे पढ़ा है, सुना है या कोई सेलिब्रिटी है। हम लोग आपस में कभी भी फोटो नहीं खिंचवाते, हमें लगता पता नहीं मेरे काम आएगा ये नहीं आएगा। बॉस, कोई नहीं पता कौन किसके कब काम आ जाए। चाहे पैसा ना दे के जाए, लेकिन आपको ज्ञान जरूर दे जाएगा। अगर ज्ञान नहीं दे जाएगा तो आपको कम से कम एक ऐसा रेफरल जरूर दे जाएगा जो आपके काम जरूर आएगा। तो एक क्रक्स तो इस पूरी स्टोरी में यह है कि आपको नेटवर्क में जाने के टाइम पे ये अपने दिमाग में कभी नहीं होना चाहिए कि मेरे को वहां से कमा के क्या लाना है या मेरे को वहां से धंधा क्या बना के लाना है। आप सिर्फ ये कहो कि मेरे को इंसान कमा के लाना है, और जिसने इंसान कमा लिया वो कुछ भी कमा सकता है। जिगर ओवर टू। आप ये सोच के जाओ कि मैंने कुछ ना कुछ लेके आना है। नेटवर्किंग में आप किसी को कुछ दे के नहीं आओगे, हमेशा कुछ ना कुछ लेके आओगे, चाहे जो भी हो। फोन नंबर ही सही है, चाहे जो भी हो, आप कुछ ना कुछ लेके ही आओगे, चाहे विजिटिंग कार्ड ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो आप लेके ही आओगे। सो जस्ट डू द नेटवर्किंग एंड गेट। अकेला बिजनेस, अकेला रिलेशनशिप नहीं, कहीं से ज्ञान भी मिल जाता है, कहीं से कुछ एग्जाम्पल ऐसी मिल जाती हैं जो आपकी लाइफ चेंजिंग बन जाती हैं। कोई ना कोई स्पीकर ऐसा मिल जाता है जिसकी स्टोरी आपको इंस्पायर करती है। सो गो फॉर जस्ट टू गेट समथिंग, यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग। जिगर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। आप लोगों की कम्युनिटी में, क्योंकि मैं भी उसका पार्ट हूँ, आप लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देते हो कि हमें बाहर से किसी को ना बुला के अपनी कम्युनिटी में जिस आदमी के पास जो भी एक अच्छी चीज़ है वो सारे मेंबर्स के साथ शेयर की जाए। सर, कितना ज़रूरी है कि अपने नेटवर्क में से अपने ही लोगों को सपोर्ट करना और उनको एक प्लेटफॉर्म देना। पहले तो if we look into our room, how many people over here are just here because they want to support each one of us in some way or the other? ठीक है? Definitely. Just look at the numbers, right? Yes. So most of them have come here to hear us, of course, but other than that, to support us as well. ये क्या हो रहा है? Community building. Community building. Right? So that is how it works. बाकी इसके अलावा, so if we think about it in a broader perspective, so 3 words come to my mind which I would like the audience to answer. What attention is, what genuineness is, and what building trust is. ये तीनों points पे ही पूरा network खड़ा होता है। एक तो so let me ask audience, attention क्या होती है? Anybody? प्राइस मिलेंगे? Something interesting. Again, please. Something interesting that grabs my attention. मेरा जिसकी तरफ ध्यान देने का मन करता है। और कोई? ध्यान से सुनना और फिर उसको समझना और आपकी मतलब जो काम बात हो रही है उसके ऊपर अंडरस्टैंड करके उसका रिस्पॉन्स। Most important thing that you can give anyone. ट्रू। सो आजकल आप सारी जगह सोशल मीडिया पे पढ़ते होंगे कि इंसान का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा रह गया, ठीक है। और वो जब हम नेटवर्क कर रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि उसका ध्यान आप पे है ही नहीं है, ठीक है। सो टू बिल्ड अ नेटवर्क, टू बिल्ड अ रिलेशन, यू नीड टू पे अटेंशन। विवेक जी ने सेम चीज मेंशन की, राइट, कि जब तक आप दूसरे पे ध्यान नहीं दे रहे, उसको ज्यादा सुनो कम बोलो और समझने की कोशिश करो उसको क्या चाहिए और वो करता क्या है, राइट। सो दैट इज हाउ वी बिल्ड नेटवर्क्स। जेन्युइननेस क्यों जरूरी है? आप कुछ बोल दोगे, अगली बार उसको मिलोगे वो भूल ही जाओगे कि पिछली बार मैंने क्या बोला था, ठीक है,
क्योंकि हर बार ही नया झूठ बोलना पड़ेगा इफ यू आर नॉट जेन्युइन, एंड दैट जेन्युइनिटी बिल्ड्स ट्रस्ट एट द एंड, कि हर बार सेम चीज रीअफर्म हो रही है। हम कॉफी में मिले सेम बात, हम टाई में मिले सेम बात, कनेक्ट सर्कल्स में मिले सेम बात, सेम चीज रीअफर्म हो रही है। So that is how we build networks, we build relations, and those long-term relations, जैसे वो सुमित जी कह रहे थे कि कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे। At the end, चाहे देना हो लेना हो जो भी हो, at the end जब वो आपका relation दुनिया के सामने आएगा तो there would be a sense of happiness inside you, rather than कि कुछ लेना देना ये तो चलता ही रहेगा। बिजनेस तो बिल्ड होंगे ही और वो बढ़ते भी हैं ऐसे ही नेटवर्क से। जैसे उन्होंने कहा कि वो हेल्प नेट से आया, ये वाले रिलेशन से नहीं आया, बट क्यों? क्योंकि वहां ट्रस्ट है, वहां जेन्युइननेस है। सो दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। विवेक जी, मैं इससे मिलती हुई बात ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हम किसी भी नेटवर्क में जाते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के साथ कितना जेन्युइनली मिलना सही रहता है? क्योंकि लोग आजकल क्या होता है, दो चेहरे लेके चलते हैं। हम पब्लिक को दिखाते कुछ हैं, हम होते कुछ हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें किसी से जब मिल रहे हैं तो हमारा असली चेहरा ही दिखाना चाहिए या पहले बार में थोड़ा नकाब होना चाहिए? You should have told me that you will be going to ask this question. मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था रैंडम चलेगा। ये फ्लो में था ही नहीं एक्चुअली, ये फ्लो में था ही नहीं। इंसान को लगता है जब हम झूठ बोल रहे हैं तो सामने वाले को पता नहीं लग रहा। हम किसी को जब हम झूठ बोल रहे हैं तो वो आपका झूठ को समझ रहा है, लेकिन आप उसको पागल नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप को पागल बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जब तक आप असली चेहरा नहीं दिखाएंगे, हम जेन्युइन कनेक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि हम जिगरजीत ने बहुत अच्छी बात कही है, जो जेन्युइननेस पे बात कही है। सी, अ पर्सन इज नोन बाय द क्वेश्चंस ही आस्क rather than answers he give. ठीक है, आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? हाउ कैन यू आस्क क्वेश्चंस? हाउ कैन यू आस्क सम वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस? नाउ Sumit ji is talking about a connection, about the kind of work he is doing with a person who is not met in the last 1 year or so, has never met him rather. ठीक है, वो ये बात कर रहे हैं, अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, और मैं 5 मिनट बाद बोल रहा हूँ कॉफी का टेस्ट अच्छा नहीं भाई। Now what he'll feel? He'll feel that he has not even listened to me. Do you think this person is going to meet me again? No. This person will feel that I have wasted 5 precious minutes of my life and he's a useless character. That's why I am repeating this thing, that when you are standing with somebody, sitting with somebody, networking with somebody, the spotlight should be on that person. उसको लगे कि इस इंसान के लिए मैं सबसे important आदमी हूँ। Another thing, we are talking about networking will lead to business. Yeah? Why we are doing networking? Underline, bottom line तो यही है ना, networking के business आएगा। See, ladies and gentlemen, आपको कभी भी मौका मिले ना, आप राहुल द्रविड़ का एक एग्जाम्पल दिया था हर्षा भोगले ने, IIM का लेक्चर है वो, आप देखिए। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि नॉट राहुल द्रविड़, हर्षा भोगले का IIM का लेक्चर है। उसने बोला दैट व्हेन यू हैव आउटकम्स इन माइंड यू विल ऑलवेज फेल। इंडियन टीम कितने फाइनल्स हारी, क्रिकेट टीम? वो इसलिए हारी कि जीतती रही और लास्ट फाइनल में ये था कि इतना प्रेशर था, ये जीतना है। आउटकम वाज इन माइंड एंड दे लॉस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, दे लॉस्ट वर्ल्ड कप आल्सो। दिस वर्ल्ड कप व्हिच इंडिया हैज वॉन अंडर द कैप्टनसी ऑफ दिस गाय सूर्य कुमार यादव, ही मेंशन्ड कॉन्फ्रेंस, पहले उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने बोला कितना प्रेशर है, उसने बोला नो, दिस इज जस्ट अनदर गेम। When you have that outcome in mind कि मुझे बिजनेस करना है, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि ये आदमी बिजनेस नहीं दे सकता, इसलिए मेरा कनेक्ट नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक एक्टिविटी कराई गई, एक 2 बहुत ह्यूज बिल्डिंग्स थी, ह्यूज बिल्डिंग्स, उसके बीच में एक वुडन प्लैंक रख दिया गया, ओके, और एक वुडन प्लैंक साइड पे रखा, नीचे रख दिया गया। लोगों को बोला आप इस पे चलें, वुडन प्लैंक पे। कोई वहां पे डांस कर रहा है, कोई चल रहा है, कोई लेट रहा है, कोई जंप कर रहा है, उस पर कुछ भी कर रहा है। वही वुडन प्लैंक उठाया और 2 ह्यूज बिल्डिंग्स, ह्यूज, जो आप कभी टाइम्स स्क्वायर गए हो, न्यूयॉर्क गए हो, तो वहां पे आपने बिल्डिंग्स देखी हो, उसके बीच में वुडन प्लैंक रख दिया गया। लोगों को बोला अब इस पे चलिए। डू यू थिंक एनीबडी हैज डन दैट? नोबडी डांस्ड, नोबडी वॉक्ड। व्हाई? द आउटकम वाज इन माइंड, क्या होने वाला।
डोंट हैव दिस आउटकम इन माइंड कि ये आदमी मुझे मिलेगा, ये बिजनेस देगा। वो आपको कहाँ रेफर कर देगा, उसके पास बिजनेस नहीं है, वो आपको कहाँ रेफर कर देगा। वाई? बिकॉज उसको आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वो आदमी कहेगा यार गौरव जी इज अ गुड पर्सन, वो कहेंगे पाजी कर दे, क्या कहते हैं यार वो कुछ सेल्स मोर करके कंपनी चलाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इज अ वंडरफुल गाय, यू शुड मीट दैट पर्सन। इफ समबडी इज सेइंग दिस थिंग अबाउट यू, यू आर अ ब्रिलियंट गाय, ब्रिलियंट गाय। कोई आपके बारे में ये बोल रहा है ना कि ही इज अ ब्रिलियंट गाय, यार ये बहुत बढ़िया आदमी है तो इससे मिलना है, आपने बहुत कुछ कमा लिया लाइफ में, बहुत कुछ कमा लिया। द लास्ट पॉइंट एंड आई एंड दिस हियर, जो लोग देते हैं ना, हम देने की बात कर रहे हैं कि नेटवर्किंग देना है, जो लोग देते हैं ना उनकी सप्लाई ऊपर से कभी बंद नहीं होती, कभी नहीं बंद होती। मैं एग्जांपल देता हूँ, आशीष नेहरा क्रिकेटर है, अभी रिटायर हो चुके हैं, अभी आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स के साथ हैं, किसी के भी साथ है, कोच है उनके। वो एक दिन क्रिकेट फील्ड पे गए और उनका कोच जो था, गौरव जी को स्टोरी पता है, जो उनके कोच थे, तो उन्होंने बोला कि क्या कोच साहब आप खुद लेट आ रहे हो, बच्चों को क्या सिखाओगे, ये है वो है। तो वो कहता भैया तू है बड़ा क्रिकेटर, ठीक है, तू खेलता है आईपीएल, तूने खेला इंडिया, ठीक है, तू रहता बड़े बड़े घरों में, मैं रहता हूँ किराए के घर पे, और मेरे को किराएदार का नोटिस आ गया, मुझे वो घर खाली करना है, तो मुझे वो घर खाली करना है। ओके, उसने ये बोल दिया और उसके बाद आशीष नेहरा चला गया। 2 दिन उनका नेट्स नहीं लगे, यू अंडरस्टैंड क्रिकेट, नेट्स नहीं लगे, बारिश हो गई। 2 दिन बाद आशीष नेहरा वाज लेट और कोच ने बोला क्या इंडिया क्रिकेटर, उस दिन बहुत ज्ञान दे रहा था, क्या हुआ? कहता जिसका कोच किराए के घर में रहता हो उसको 2 दिन तो लगते हैं ना मकान ढूंढने में, चाबी पकड़ा दी और उसको घर लेके दे दी। जिन लोगों को देना आता है ना दोस्तों, उन लोगों की ऊपर से सप्लाई कभी बंद नहीं होती। आप लोगों को क्या दे रहे हैं? अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, कोई रेफरल दे रहे हैं, आप सिर्फ अच्छा एक्सपीरियंस दें लोगों को। जब लोगों के साथ मिले, लोगों को लगे आई वांट टू मीट दिस पर्सन अगेन एंड अगेन। नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट कलेक्टिंग कॉन्टैक्ट्स और मेकिंग कॉन्टैक्ट्स। Networking is all about the kind of experience you are giving to that person, and that experience will come back to you in so many ways. That's my point of view on this. मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जैसे अभी विवेक जी ने कहा कि ये हमारे सिलेबस में नहीं था जो मैंने पूछ लिया। उसका पर्पस सिर्फ इतना था कि जिस दिन हमारा ये पैनल डिज़ाइन हुआ, हमें कहा गया था कि आपस में डिस्कशन कर लेना अपने। हम तीनों बैठे, हमने कहा क्या करना है, कहते वी विल गो अ रैंडम। हमारा पर्पस यही था कि आपके साथ जो भी बात हो, हम आपके सामने जो भी प्रेजेंट रखें वो ईमानदारी के साथ रखें। हम में से कोई भी डबल चेहरा लेके नहीं आया था। हमारे दिमाग में ये नहीं था कि करुण ये पूछेगा और मैं ये आंसर दूंगा, मेरे को पता मैं ये क्वेश्चन करूंगा, जिगर ये आंसर देगा। हमारा पर्पस ये था कि आप अगर इस सेशन में आए हो तो आपको ईमानदारी के साथ कुछ दिया जाए, और यही एक नेटवर्क का सबसे बड़ी ब्यूटी है कि अगर आपको नेटवर्क ईमानदार मिल जाए तो आपका धंधा ईमानदारी के साथ जरूर चलता है। इसी के साथ थैंक यू टू एवरीवन एंड थैंक यू टू माय को-पार्टनर। Now the floor is open for about 2-3 questions. Does anyone have any questions? Any questions? हेलो एवरीवन। कई बार ना जैसे हम किसी बंदे के साथ पहली बार मिलते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि 5 मिनट बाद बंदा पूछ रहा था कि भाजी कॉफ़ी का टेस्ट वधिया नहीं सीगा। मेरा सवाल ये हैगा सर कि ऐसे बंदे नाल आपां रेसिप्रोकेशन किवें करनी है? रेसिप्रोकेशन कैसे करनी है? आप कह रहे हैं कि कोई आदमी आपको बोल रहा है कि कॉफी का टेस्ट कैसा था। राजदीप, व्हाट अदर्स गिव टू यू वो उनकी रिफ्लेक्शन है। आप लोगों को क्या देते हैं वो आप हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। The way you speak to others is the way you speak to yourself. So if others are doing this to you, किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है that sometimes nothing good happens to you. Why? Because you are the good that happens to others. So don't worry about it. Yes, sir, please. Just to add to what you said, so Rajiv, specifically for your question, I would say, so imagine that you are in the center
and you have circles all around you. So you are living in the society and you can't, I mean, say I'm not going to connect to this person because he didn't treat me well. So instead of putting him in the inner circle, you put him in the outer circle. But still he is there in your circle. Don't neglect him, don't stop meeting him, but just in your heart you should be clear that in place of him being in my inner circle, now he is in my second last circle or my last circle. Yes. I also want to add one thing, only 30 seconds. कि जब जैसे करुण जी ने बोला था कि जब हम किसी को मिलते हैं, कई बार बंदा हमें पागल बना रहा होता है कि डबल चेहरा लेके मिलता है. तो मेरी विवेक सर से एक बार डिस्कशन हुई थी इस बारे में कि कई बार बंदा ऐसे इवेंट्स पे आ जाता है डबल चेहरा लेके, लेकिन जब वो बंदा अकेला होता है ना, जो एक्टिविटी वो अकेले में करता है वो एक्टिविटी का असर झलकता है जब वो इवेंट्स में भी जाता है. तो बंदे को जैसा है वैसा ही पेश आना चाहिए. थैंक यू सो मच. ऑन अ लाइटर नोट मैं पे चीज एक और ऐड कर देता हूं कि अगर कोई ऐसा बोले कि भाजी कॉफी ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਭਾਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ. But my only humble request is please don't repeat this coffee का स्वाद अच्छा नहीं था. Hayat guys are actually looking at me. Thank you so much. There's one more question, please. Can somebody hand over the mic? Yeah, go. A great session, guys. As the four of you would know that I love networking and I live by it. Somebody had once said to me that how do you create luck? And they had said by being in the right place at the right time. I think networking is that. What would you leave as the three of you, even four, your final words for all of us today? Your final. Mine is thank you very much. वो कहते हैं अपना मेहनत कीजिए, फल की इच्छा मत रखिए, अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए. जैसे सज्जन जी ने एक्सप्लेन किया कि अगर कोई आपको पसंद नहीं है तो आप उसको सर्कल से मत निकालिए. अगर आपकी किसी के साथ थिंकिंग मैच नहीं हो रही, आपकी वाइब मैच नहीं हो रही, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट, डोंट पुट देम आउट ऑफ योर सर्कल, जस्ट keep them into the circle, but you should define that who is into your inner circle and who is in your outer circle. That was on a lighter note. On a serious note, अगर आपको नेटवर्किंग करनी है तो आप पेड़ों की तरह बनिए. पेड़ जो आपको छाएं भी देते हैं, पेड़ जो आपको फल भी देते हैं, ठीक है, पेड़ जो आपको लकड़ी भी देते हैं, पेड़ सिर्फ देना जानते हैं. अगर आप नेटवर्किंग में पेड़ों की तरह बन सकते हैं तो आई थिंक you will be a very successful person. I'm not saying professional, I'm saying you will be a very successful person because people work with people don't work with brands. So adding to what they have set the stage, set the bar very high, उस पे add करना थोड़ा मुश्किल है, but still like making connections genuinely and then leading by example of giving back and not expecting कि हमें return में कुछ मिलेगा या नहीं. That should be a outcome जो अपने आप आ रही है. जैसे वो कह रहे हैं पीछे से सप्लाई नहीं बंद होनी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना. आप यहाँ से चले गए, आपने कार्ड एक्सचेंज कर लिए, वो डेस्क पे पड़े रहेंगे, डस्टबिन में चले जाएंगे, घर वाले उठा के फेंक देंगे, कोई सफाई वाला आएगा वो ले जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना. द जेन्युइन कनेक्शंस यू मेक, द मोमेंट यू ट्राई टू गिव बैक, दैट इज व्हेन यू गेट बाय इटसेल्फ. उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सोचने की कि मिल रहा है या नहीं. दैट्स ऑल. और मेरा तो हमेशा से एक ही बात है कि आप जहाँ पे भी जाते हो, अगर एक इंसान गलत मिल गया तो उसके कारण से पूरा समाज गंदा नहीं हो जाता. आप उसको छोड़िए, आगे चलिए. बहुत दुनिया में अच्छे लोग पड़े हैं, अच्छों को चूज करते जाइए, बुरों को छोड़ते चले जाइए, आपकी जिंदगी अपने अच्छी हो जाएगी. That's it. Let's give our moderator and our panelists another big round of applause. Sharing your wisdoms and experiences with us. I would like to now invite Mr. Advait Upadhyay to kindly facilitate our guests with a token of our appreciation. जिगर कह रहा है कि हमने अवार्ड्स बोले थे जो आंसर्स करेंगे तो हमने दिए नहीं है. तो जिगर आप जिनको 2-3 को देना चाहें तो हमारे पास ऑलरेडी हैं. राधी
This is special for night stations and night Sanjay ji. Gaurav. Gaurav. Thank you all for being such a wonderful audience. Now we can continue our normal session. Thank you, sir. Great session, guys. Thank you. Lovely audience. Thank you so much. That was a wonderful session.